ساتھ کو دعائیں اور خدا کا کلام شیئر کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو کی سلامتی ہو۔ بڑا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ آج کا دن واقعی بڑا ہے، حقیقتاً بڑا ہے۔ کچھ لوگ شک میں بول رہے ہیں بڑا ہے کیسے؟ بڑا کام ہوا اور امینول پروجیکٹ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے آج کا بڑا دن، ان کو نئے جوتے مل گئے، ہے نا؟ چھوٹے بچوں کے لیے نئے کپڑے، ایسے ہی نا؟ اور بڑوں کے لیے بڑا دن اس لیے کہ ان کی جیب میں سے جو بڑے بڑے نوٹ نکلے، ان چھوٹوں کے لیے پھر جو ہے وہ بڑا دن ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے سارے انتظامات کے لیے، جتنے بھی عزیز، خاص طور پر منیر اختر صاحب جنہوں نے لیڈ کرنے میں مدد کی، اور اسی طرح سیکیورٹی اور باہر جو بھی ارینجمنٹ ہے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کرونا کے باوجود کچھ نہ کچھ تو کرو نا، مطلب کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اپنے لیے آئے، اپنی اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگ ٹائم پہ 10 بجے، ہے نا؟ ایسا ہی تھا نا؟ 10:30، اچھا۔ اور کون 10 بجے شروع ہوا تھا نہانا؟ ہمارے ایک ایلڈر صاحب تھے بہاڑی میں، وہ 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا نا تیار اور عبادت کا، تو بالکل 5 منٹ کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا چرچ سے، جا کے دیکھنا 10 بجے چلو ایلڈر صاحب کو بلا لاتے، بس میں نہ آنے لگا۔ وہ جو بس میں نہ آنے لگا مطلب وہ ایلڈر صاحب ٹائم ہو گیا، ہاں میں 1 منٹ لانا۔ تو وہ پھر کچھ دوست ہمارے جو ہوتے ہیں نا بڑے تیز ہوتے ہیں، 10 بجے کا ٹائم، بس میں 10 بجے شروع کر ہی دینا نانا، تو پھر وہ ٹائم جو ہے وہ آگے ہو جاتا ہے۔ بابر گلزار صاحب باہر ان کی ساری جو رنگ روغن دیکھ رہے ہیں، اس میں ان کی ساری مدد کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایلڈر صاحبان نے رات 24 کی رات اچھا میسج اور اچھا پروگرام اور بہت زبردست باہر سوپ جو تھا وہ دیا، اس کے لیے ان کا شکریہ۔ ایک دفعہ ضرور ان کو اپریشیٹ کیجیے۔ ایلڈر صاحب نے 1 پیغام دیا، میں نے ان کو 2 دفعہ اپریشیٹ کیا، ہے نا؟ جس نے 2 پیغام دیے ابھی اس کو 1 دفعہ بھی نہیں اپریشیٹ کیا۔ بتا سکتے کون؟ بوا جی۔ رفت کے لیے بھی شکریہ، سنڈے اسکول اور خاص کے خواتین میں انہوں نے سیوا سنڈے خداوند کے کلام کی خدمت کی۔ رفت کو پتہ ہے کہ مجھ سے اپریسیشن لینی تو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا، تو یہ رفت کو تو پتہ ہے، باقیوں کو شاید دوستوں کو نہیں پتہ۔ میں اپریشیٹ کرنے میں ذرا کمزور ہوں، تعریف کرنے میں بہت ہی کمزور ہوں، کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے، کھانا ٹھیک نہ بنے تو میں کہہ دوں وہ مزہ نہیں آیا، باقی ٹھیک ہے، باقی اپریسیشن جو ہے وہ منہ سے نکلتی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں نکلتی؟ کوئی ٹیکنیکل فالٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر بھی سب کا شکریہ، کرسمس کے اور نئے سال تک جتنوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ ضرور نبھائیں، اور خدا ان کو ان کی خدمت میں کے سبب سے ان کو برکت دے۔ آج بھی چائے اور سموسہ ہوگا، باہر ہم بیٹھیں گے، رفاقت رکھیں گے، عبادت کے بعد ضرور ٹائم نکال کے ہم بیٹھیں اور
چائے کے ساتھ پھر یہاں سے ہم رخصت ہوں گے۔ آج کلام مقدس میں سے 2 اہم مضمون ہم چھیڑیں گے، ایک ہے تجسم المسیح اور دوسرا ہے تقدیر الہی۔ کون سا؟ تجسم المسیح اور تقدیر الہی۔ جب ہم بڑا دن کہتے ہیں تو کچھ رہ جاتا ہے کہ دن بڑا ہے، بیچ میں یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ شاید نہیں آتا، باہر کسی کو نہیں پتہ لگے پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں بڑا دن مبارک، کیوں ان کا دن کیوں بڑا ہے۔ اور اگر ہم اس کا کرسمس کہیں تو بہت سے جو مسلم ہیں شاید ان کو اس کے میننگز کا نہیں پتہ، کرسچن بھی شاید اس پر غور شاید نہ کرتے ہوں۔ کرائسٹ اور ماس 2 لفظ ہیں، اور جب ہم اردو میں عید مبارک کہیں، عید تجسم المسیح مبارک ہو، تو پھر ہمیں مشکل لگتی ہے کہ اتنا ہیوی جو جملہ ہے وہ کیسے ہم ادا کریں، اس لیے جان چھڑا بڑا دن مبارک ہے نا۔ عید تجسم المسیح کہنا ذرا کیا ہے، مشکل ہے۔ لیکن باہر آپ کو بہت سارے لوگ سوال کرتے کہ آج آپ حضرت عیسیٰ کی کیا منا رہے ہیں؟ پیدائش کا دن، آپ سالگرہ منا رہے ہیں۔ میری کیا جرت کہ میں المسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کروں، میری کیا جرت کہ میں اس کی سالگرہ، جس نے مرنا نہیں اس کی سالگرہ کیسے سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ سالگرہ اس کی سیلیبریٹ کی جاتی ہے جس نے مرنا ہو، اور جو زندہ ہو اس کی نہ آپ سالگرہ کر سکتے ہیں، نہ تیسرا کر سکتے ہیں، نہ جنازہ کر سکتے ہیں، نہ آپ 40واں کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا ایسا کوئی حرکت کریں گے تو وہ مارے گا۔ یہ جو زندہ ہے، اور المسیح کی جو پیدائش کا دن ہے، جیسے دنیا سمجھتی ہے کہ پیدائش، لیکن وہ کیا، کون سا دن ہے؟ وہ تجسم کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ تجسم۔ اور ان دونوں الفاظ کو ہم تقدیر الہی اور تجسم کو کھولیں گے، تھوڑا سا مشکل ہے، آپ لوگ برداشت بھی کیجیے گا، ساتھ شامل بھی آپ ہوں، تاکہ ہم ان دونوں مضامین کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سن سکیں۔ تقدیر لفظ کیا ہے؟ تقدیر اگر تے ہٹائیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ قدیر، یعنی قدرت سے اس کا تعلق لگتا ہے۔ لیکن ہم تقدیر، نصیب، قسمت، مقدر، ایسے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور تقدیر، قسمت، یہ بہت بڑا ایک نظریہ جو ایمان کے اگینسٹ بہت زیادہ وجود رکھتا ہے اور زبردست طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں مسیح سے دور لے جاتا ہے، یہ ہمیں خدا کو جاننے سے ہمارے لیے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اسے جاننا اور سمجھنا ہے تجسم میں۔ کس میں؟ تجسم میں، المسیح کے تجسم میں۔ کس کو سمجھنا ہے؟ تقدیر کو یا نصیب کو یا قسمت کو ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ بھاگ ایک لفظ ہے جو ہندی زبان کا ہے، نصیب کے لیے استعمال، ایک بھاگ بھری اور پاگا والا ہے نا، بہت سارے یہ جو ہے وہ ہندی ورڈ ہیں۔ پنجابی کا بھی بھاگ لفظ ہے، یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ قسمت کے 12 ستارے، دراصل وہ کیا ہیں؟ دیوتا ہیں، معبود ہیں۔ کتنے؟ 12۔ ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ قسمت کے 12 پتھر کتنے؟ کیوں جی سلیمان جی؟ سلیمانی یاقوت، یہ بہت بڑے مشہور جو ہے وہ پتھر ہیں۔ کتنے؟ 12 پتھر۔ اور پھر جو قسمت کے لیے تعویذ نہیں، گنڈا، قسمت کے لیے گنڈا، جس میں کوئی چیز قائم کر دی گئی ہو، نصب کر دی گئی ہو، بنا دی گئی ہو، مقرر کر دی گئی ہو۔ اس سے مراد ہماری یہ ہے، جو دنیا مانتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ چیز میرے اعمال اور میرے افعال
اور ان کے نتائج میرے اوپر خوشی، شادمانی یا بدنصیبی جو ہے یا برے حالات وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ قسمت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ نصیب میں ہی لکھا ہے، وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ نہیں۔ بڑا جملہ لکھا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے، ہے نا، وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ بھائی ہم آپ کو کہاں دے رہے ہیں نصیب سے زیادہ؟ نہیں دیتے، وقت سے پہلے بھی نہیں دیں گے، لیکن ہمیں اس نظریے کو درست کرنا ہے۔ اور جو گنڈا ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ کسی چیز پر پھونک کر، پڑھ کر، دعا کر کے کسی بھی چیز پر اس میں کسی چیز کو نصب کر دینا، قائم کر دینا کہ یہ اب ہو یا یہ اب نہ ہو۔ مثلاً آپ نے اینک پر، اپنی انگوٹھی پر، اپنی چوڑیوں پر، اپنے دوپٹے پر، اپنی شرٹ، کسی چیز پر پانی یا تیل پر کیا کروا لی؟ دعا کروا لی، پھونک مروا لی، دم کروا لیا، تاکہ کیا نہ ہو؟ میں بیمار نہ ہو، میرے نصیب میں تبدیلی کی جائے اس گنڈے کے سبب سے۔ گنڈا کیا ہوتا ہے؟ تعویذ تو فرق چیز ہے۔ کسی چیز پر جب ہم دعا کر دیتے ہیں، کسی چیز پر، وہ کیا بن جاتا ہے؟ اور ہمارے گھر میں پیاز نہیں میں بات کر رہا نا، گنڈے کی بات کر رہا ہوں، جو تعویذ اور گنڈا جسے گرا لگانا کہا، گنڈ سے قائم کر دینا، باندھ دینا، بیماری کو باندھ دیا گیا، اسے نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کو کیا کیا؟ جڑی لگڑی نہیں انہوں کتنے بننا جب کیسے باندھیں گے؟ یعنی میں قسمت اور تقدیر کی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنی تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے، میں اس معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ جو کچھ لکھا گیا ہے، عام طور پر میاں بیوی لڑ پڑے نا، میری تقدیر سے نکٹ ہوئی لکھیا ہے، وہ بڑا جملہ مطلب نکل جاتا ہے نا، خواتین نکل جاتا ہے نا، نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا یہ۔ اور مطلب جب میاں بیوی لڑے تو بڑے بڑے خطرناک قسمتی جملے جو ہیں، قسمتی اور نصیبی جملے جو ہیں مطلب وہ منہ سے نکلتے رہتے ہیں۔ پکی بات ہے نا، پکی بات، میرا نصیب ہی سڑیا سی، وہ چلے گئے، وہ جنازے پہ گئے، ان کے نصیب میں آج جنازہ لکھا تھا، وہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو قسمت کے اوپر بلیو کرنا، ستارہ جد، ستارہ جس کا مطلب کیا ہے؟ میں خوش نصیب ہوں، میں کیا ہوں؟ خوش نصیب ہوں، اور نصب کی گئی ہوں کہ مجھے یہ ایک دعا تھی جب سارا کی اولاد نہیں ہوئی، کس کے ہوئی؟ ہاجرہ کے، نہیں میں ان 12 کی بات کر رہا ہوں کہ جب 12 بنی اسرائیل کے 12 بیٹے، راخل کے اس نے لیا کا نام، اس نے کیا رکھا؟ جد رکھا اپنے بیٹے۔ جد کا مطلب ستارہ جد، ستارہ جد سے اس نے کیا نام رکھا؟ میں کیا ہوں؟ خوش نصیب ہوں، میں بد نصیب نہیں بلکہ میں کیا ہوں؟ خوش نصیب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ، یہ ایمان، تقدیر یا قسمت پرستی، یہ انسان میں پھیلتی گئی اور یہاں تک پھیلی کہ وہ خدا کو بھول گیا۔ اپنی قسمت میں حادثہ نہ ہو، سوکھی جوتی باندھ دینا، کس کے ساتھ؟ گاڑی کے ساتھ، کالی ٹاکی باندھ دینا، کیا نہ ہو؟ وہ کیا باندھا ہم نے؟ گنڈا باندھا، نظر نہ لگے۔ گڈی دے 20 بول لٹکرے ہوندے نے، مطلب کالی ٹاکی، سکی جوتی، مطلب یہ کسی بھی رکشے کے پیچھے، کبھی مرسیڈیز کے پیچھے یا اوپو کے پیچھے یا کسی اور جو پجیرو ہے اس کے پیچھے یا آگے کہیں کالی ٹاکی نہیں ہوتی، جو تھکے جو رکشا ہے اسی کے اوپر۔ اور اسی طرح ہم جو سب سے زیادہ کمزور ہیں اور قسمت کے گھیرے ہوئے ہیں،
किस्मत के सबब से परेशान हैं, किस्मत के सबब से अपनी तरक्की समझते हैं, उन्होंने इस बिलीव को अपने लिए अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हम क्या सीखेंगे? तकदीर इलाही। क्या सीखेंगे? तकदीर इलाही। कुछ नस्ब कर दिया गया, कुछ मुकर्रर कर दिया गया, कुछ कायम कर दिया गया, वो इस्तक़रारी भी रहा, वो यानी सिलसिला जारिया भी है। वो क्या था? 5-7 चीजें सिर्फ, उसके अलावा नहीं। मसलन फरदौस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ये क्या है? तकदीर इलाही। लेकिन फरदौस में कौन कौन नहीं होगा, वो नहीं बनाया गया। क्या बना दिया गया? फरदौस क्या किया? बना दिया गया। उसमें कौन कौन नहीं होगा ये नहीं लिखा गया कि फलां एल्डर होगा, फलां एल्डर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि फरदौस का क़याम तकदीर इलाही, तकदीस होगी, ये कायम कर दिया गया। किस किस की तकदीस नहीं होगी, ये नहीं कायम किया गया। तजस्सुम अल मसीह, मसीह का तजस्सुम होगा, ये क्या है? तकदीर इलाही। और सलीबी मौत होगी, ये क्या किया गया? ये क्या है? तकदीर इलाही। सलीबी मौत किस किस के लिए नहीं होगी, ये कायम नहीं किया गया। बल्कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसलिए तकदीर जो है उसके लिए 3 अल्फाज जो अबरानी और यूनानी में इस्तेमाल किए जाते रहे। अबरानी में अखूक एक लफ्ज़ है तकदीर के लिए, जो कादिर मुतलक का हुक्म, कादिर मुतलक का फरमान, कादिर मुतलक ने कायम किया, कादिर मुतलक ने तख्लीक किया, वो अखूक लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह यूनानी में 3 अल्फाज जो इस्तेमाल हुए उनका भी यही मतलब है। इन तीनों अल्फाज को हम सुनते हैं प्रो के साथ। किसके साथ है? प्रो यानी पेशतर से। किससे? प्रोग्नोसिस, यूनानी लफ्ज़। कौन सा लफ्ज़? प्रोग्नोसिस, यानी पेशबीनी करने वाला, या पेशबीनी की गई, पेशगोई की गई, पहले से बताया गया। और तजस्सुम होगा, अभी जो आपने दानियल की किताब में से जो हवाला पढ़ा, जो आपने यशाया में से पढ़ा, चले वो पढ़ लेते। पढ़िए यशाया 9वां बाब 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। जब लफ्ज़ होगा, कौन सा लफ्ज़ लगा? तो इसका मतलब क्या है? कि पेशबीनी है, पेशगोई है, बयान किया गया और पहले से बताया गया कि एक लड़का हमारे लिए क्या किया गया? बख्शा गया। यह पेशबीनी, प्रोग्नोसिस और प्रोनोया दूसरा लफ्ज़। कौन सा लफ्ज़? प्रोनोया, दूर अंदेशी। क्या चीज़? दूर अंदेशी और परवरदिगारी। दूर अंदेशी क्या? ये बहुत ही ज़बरदस्त लफ्ज़ कि पहले से आदम को खुदा ने क्या कहा? जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। दूर अंदेशी। और फिर उसमें परवरदिगारी पाई गई कि खुदा इंसान को क्या करे?
उसकी परवरदिगारी करे, उसे पाले। अगर वो मौत का शिकार भी हो जाए तो फिर भी खुदा क्या करे, उसको पाले, उसकी परवरदिगारी करे। इसलिए कदीमुल अयाम से, कब से? बनाए आलम से पेशतर। इफ्सियों पहला बाब 4 आयत निकालिए, पढ़िए। जो उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअब हों। बनाए आलम से पेशतर उसने क्या किया? किसमें? बीच में एक जुमला वो बात कर गया, उसमें। किसमें? जिसका हम तजस्सुम बनाते, उसमें चुन लिया। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास। बनाए आलम से पेशतर, परवरदिगारी, परवरदिगारी प्रोनोया यानी दूर अंदेशी, और उसी में पालना है। उसने चुन लिया, कब से? बनाए आलम से पेशतर। मोटा लफ्ज है ना? क्या क्या मतलब? कुछ भी बनाने से, आलम बनाने से पहले उसने किसको चुन लिया? जरा अपना नाम तो लें। किसको चुन लिया? कहें तो सही अपने आप को, एक दफा कहें। किसको चुन लिया? अपना नाम भूल गए? ओहो, भूल गए? अपने आप को कहने से भी शर्मा रहे कि मुझे नासिर, मुझे बनाया आलम से पेशतर खुदा ने मुझे क्या किया। इस तरह कहे तो सही। सबको चुन लिया नहीं, सब ने छो जी, तुसी सारे जिम्मेदारी नहीं, अपनी अपनी बात करें। क्या एक दफा कह के देखें, बनाए आलम से पेशतर। कहीं तो बनाए आलम इतका के फंस गया। बनाए आलम से पेशतर खुदा ने मुझे क्या किया? परवरदिगारी, पालना है उसने। अगर कोई गुनाह में गिर जाए, मौत में गिर जाए, खुदा कहे नो बेटा खत्म करो, है ना, नया बनाता हूं। क्या करता हूं? बना सकता था खुदा? गले तो नहीं पढ़ सकते ना उसके, हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन क्या था? वो परवरदिगार है। वो क्या था? उसने क्या किया वो भी हम देखेंगे। और प्रो हॉरिजो, प्रो पहले से, हॉरिजो मुकर्रर करना, ठहराना, तरतीब देना। मुकर्रर करना, ठहराना, तरतीब देना, ये तकदीर इलाही है। ये क्या है? पहले से तरतीब दे दिया, दो तरफा अहद कर लिया। क्या कर लिया? अहद बांधा। किसके साथ? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स ने। प्रो हॉरिजन, पहले से, बनाए आलम से पेशतर, अली में कुल, वो जानता है कि इंसान गुनाह और मौत में गिरेगा। इसलिए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स ने आपस में क्या किया? एक अहद बांधा कि हम क्या करेंगे? इंसान को, और उसी अहद में अल-मसीह के तजस्सुम को कायम कर दिया कि वो जिस्म क्या करेगा? वो जिस्म इख्तियार करेगा, वो जिस्म में आएगा। हम एक तरफा अहद को भी जानते हैं, एक तरफा अहद और दो तरफा अहद। अगर मैं दोहरा दूं, कुछ हमारे नए दोस्त हैं, दो अहद हमने यहाँ पर पढ़े हैं, एक दो तरफा अहद और एक एक तरफा अहद। अहद बांधने के असूल में दो फरीकैन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनके दरमियान में क्या किया जाए? अहद बांधा जाए। और दो तरफा अहद बराबरी की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? कि दोनों फरीक बराबर हैं, ताकत, कुव्वत, इख्तियार में क्या है? बराबर है। और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के बगैर कोई और मखलूक उनके बराबर नहीं है। इसलिए दो तरफा अहद बांधा गया और उसमें डिसाइड ये किया कि अल मसीह बेटा, कलमा मुजस्सम होगा।
और रूल कुद्स दूसरे मददगार के तौर पर तकदीस के लिए इस दुनिया में काम करेगा। इस तरह से इंसान को बचने के लिए उम्मीद, बल्कि खुदा ने बनाया आलम से पेशतर, जैसे हमने अपना नाम लिया, यकीन रखें 3 किस्म की कलीसियाएं कौन कौन सी? बावसीला अमाल या शरीयत के, और दूसरी जो सैक्रामेंटल है, और तीसरी जो अमान के वसीले से। मैं कौन हूं? मैं बावसीला ईमान, मैं हक का सतून। अपने दिल में जरूर ये कहिए, मैं बावसीला ईमान, मैं हक का सतून, मैं कलीसिया, मैं खुदा का बेटा और बेटी, अब से नहीं बल से बनाया आलम से पेशतर उसने मुझे क्या किया? चुन लिया, कायम कर दी। ये तकदीर इलाही, इसके अलावा मुझे अपनी तकदीर में कुछ भी नहीं लिखा उसने कि मैं फलां बंदे दा सिर पड़ांगा, है ना, इन्ने साल जेल चलांगा, है ना, या मैं सबसे कमज़ोर काम करूँगा, या मैं भूखा रहूँ, मैं नशई हूँ। खुदा का ये काम नहीं है। खुदा ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था, बल्कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, और उसकी मोहब्बत का नतीजा ये हो कि इंसान इस दुनिया में क्या हो? ख्वार हो, बीमार हो, दुखी हो, लाचार हो, उसके पास रोजगार ना हो, वो लोगों में हकीर समझा जाए। क्या खुदा की मोहब्बत का नतीजा ये? नहीं। उसकी मोहब्बत का नतीजा ये कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और ईद तजस्सुम अल मसीह, तजस्सुम क्या मतलब? जिस्म, इख्तियार। ज़ाते इलाही के दूसरे एक नूर ने जिस्म इख्तियार किया, और जिस्म जब हम आदम और अल मसीह पर गौर करेंगे तो फिर हमें यकतरफ़ाहत की एक और हकीकत समझ आएगी। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया। कैसा बनाया? उसे मिट्टी से बनाया और उस पर जिंदगी का दम फूंका, और वो जीती जान होगा। जिंदगी का दम, जिंदगी, इसका मतलब इंसान में मौत थी नहीं। कोई साल गिरह केक नहीं सी कटा जाना, है ना। अभी तो अपना केक कटन ली बस पुठा काम किया फिर साड़ा केक कटिया जाए, साल गिरह मनाई जाए, 40वां भी मनाया जाए, 30वां भी मनाया जाए। नहीं, जिंदगी फूंकी, मौत नहीं फूंकी। मौत इंसान में नहीं थी। फूंकने वाला पाकीज़ा। फूंकने वाला कौन? तो क्या फूंका? पाकीज़गी फूंकी। उसमें गुनाह और बदी नहीं थी। फूंकने वाला आजाद मर्जी का मालिक। तो क्या फूंका? आजाद मर्जी फूंकी। इंसान क्या हुआ? जीती जान। और ये आदम है। इस तरह के आदम के साथ यकतरफ़ाहत कायम किया। किस तरह के? जिसमें क्या है? जिंदगी। दूसरा पाकीज़गी। तीसरा आजाद मर्जी पर है। ऐसे इंसान के साथ, ऐसे जो पर्सन है उसके साथ उसने यकतरफ़ाहत, उसे अदन में रखा कि तू हर एक चीज को क्या कर सकता है? बेरोक टोक। और क्या करो? पलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। और जब उसने अहद बांधा कि तुम हर एक चीज खा सकते हो, तुम्हारे लिए हर अच्छी चीज होगी, इस तरह के इंसान के साथ। और वो अहद खुदा का सिर्फ एक असूल, वो अहद कायम करने के लिए यकतरफ़ा अहद में क्या असूल है कि एक फरीक क्या है? मजबूत, और एक क्या है? कमज़ोर है। यानी एक कादिर मुतलक है, एक क्या है? मखलूक। मखलूक ने उस असूल को पूरा करना है ताकि
एक तरफा अहद क्या रहे, कायम रहे। टूट गया, नतीजा क्या हुआ? मौत आई, बदी आई, है ना, गुनाह की गुलामी आई। इस तरह का इंसान दोबारा से एक तरफा अहद कायम करने के लायक नहीं है। वो सारी शरीयत पूरी कर दे। यीशु मसीह से किसी ने पूछा मैं क्या करूं कि जिंदगी में का जाके ये कर, तो मैं बचपन से करता। ठीक, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं मैं आज शराब नहीं पीता, मैं आज सिगरेट नहीं, मैं कुर्बानी का गोश्त खांदा ही नहीं ना, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पर हम क्या करते हैं कि हम ये भी असूल पूरा कर दिए, ये भी असूल कर दिए। नहीं, बल्कि क्या है, एक तरफा अहद इंसानों के साथ दोबारा कायम होने के लिए जरूरी क्या है, वैसा ही इंसान हो जैसा कि आदम को बनाया। मट्टी से आदम को बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका, और वो कैसा हुआ? जिंदा, पाकीज़ा और आजाद मर्जी पर। लेकिन अब क्या हुआ? एक इंसान ने जिस्म, है ना, एक जिंदगी, पाकीज़गी और आजाद मर्जी ने, कलमा ने, लोगोस ने क्या कर लिया? जिस्म इख्तियार कर लिया। उसमें जिंदगी थी, उसमें पाकीज़गी थी, उसमें आजाद मर्जी। और ये अंजील मुकद्दस ने बयान किया। अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना का खत, दूसरा खत, नहीं, पहला खत, 5वां बाब, उसकी 20वीं आयत। जी पढ़िए। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही। इसका मतलब यह है कि पहले जिस्म पर जिंदगी, पाकीज़गी और आजाद मर्जी फूंकी गई। इस दफा क्या हुआ? जिंदगी, पाकीज़गी और आजाद मर्जी ने क्या किया? जिस्म इख्तियार कर लिया। ऐसा इंसान एक तरफा अहद कायम कर सकता था, और उसने क्या की? शरीयत को पूरा किया। उसके पूरे करने के सबब से आप गौर करें, जो पूरा करने वाला है वो अंदर से क्या है? सच्चाई से मामूर। क्या लिखा है? कलाम मुजस्सम, फजल और सच्चाई से मामूर भरा हो। एक ऐसा इंसान। और बड़े दावे से यीशु मसीह ने सवाल किया खुदा से, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ मेरे खुदा। कोई और नहीं पूछ सकता, कोई और नहीं पूछ सकता, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर मौत है, अंदर क्या है? बदी है, अंदर क्या है? गुनाह की गुलामी। शरीयत सारी पूरी कर दी, नेक माल सारे कर दिए, साक्रामेंट सारे पूरे कर दिए, नतीजा फिर पूछ नहीं सकता। कौन पूछेगा? जिसके अंदर क्या है? पाकीज़गी। और जब ये कलाम मुजस्सम हुआ, बड़ा भी हो सकता, 30 साल का कलमा मुजस्सम होकर दुनिया में आ जाता, थोड़ी थोड़ी देर बाद इंसाना ने मान नहीं लेना से ना, राब्ता हो जाना। लेकिन नजात माँ के पेट से लेकर सर सफ़ेद होने तक इंसानों को नजात कहाँ से? माँ के पेट से लेकर सर सफ़ेद होने, उसने सबके लिए जिस्म इख्तियार किया, उसने सबकी नुमाइंदगी की, वो सबके लिए मुजस्सम हुआ। इसलिए दानियल की इस किताब में जो हमने पढ़ा, अगर गौर करें कि उसके मुजस्सम होने से जो तकदीर इलाही हमें हासिल है, दोहराने क्या हासिल है? उसमें से क्या क्या चीज़ हासिल है हमें? फरदौस
फरदौस, हमेशा की जिंदगी क्या है? हासिल है। जिन्होंने ढूंढना है अभी, जिन्होंने नेक माल करके लेनी है, जिन्होंने साक्रमेंट करके लेना है, वो भूल जाए। क्या हासिल है हमें? हमेशा की जिंदगी। तकदीर इलाही में हमें हमेशा की जिंदगी बनाया आलम से पेशतर उसने मुझे चुन लिया, जिंदगी दे बनाने से पहले। और आज जब हम सेलिब्रेट करते हैं दानियल की किताब, उसका 7वां बाब मेरे साथ निकालिए। एक आदमजाद, उसको क्या किया? एक आदमजाद। यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को इब्ने आदम क्या कहा? वही कह सकता है। नस्ल आदम और इब्ने आदम में फर्क है। नस्ल आदम जो गुनाह में गिर गए, उसकी फितरत आदम की उस फितरत पर जो गिरी हुई सूरत में थी, और इब्ने आदम आदम की उस फितरत पर जिस पर उसे तख्लीक किया गया। इसलिए तजस्सुम का मुझे फायदा क्या कि मैं नस्ल आदम से इब्ने आदम हो जाऊं। मैं और आप नस्ल आदम से क्या हो? हमारी फितरत लौटा दी जाए, मौत को निकाल दिया जाए, जिंदगी दे दी और पाकीज़गी जाती रहे और मेरी तकदीस कर दी जाए, मुझे पाक किया जाए और गुनाह की गुलामी से निकाल कर कहां पर? आजाद मर्जी में खड़ा कर दिया जाए। यह तजस्सुम का में तकदीर इलाही मेरे लिए जो लिखा गया। चलें पढ़ लेते ज़बूर 139 खोलिए, दानियल पे हाथ रख लें। 139 जी, मैं आपके लिए पढ़ता हूं क्योंकि मेरे दिल 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। क्योंकि मेरे दिल को तो तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना, तेरे काम हैरत अंगेज, मेरा दिल उससे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। कुछ भी बनने से पहले अगर खुदा आपको और मुझे जिंदगी ना देता, लेकिन ये छुपी थी। किस में छुपी थी? अल मसीह के तजस्सुम में। ये छुपी थी रूह कुद्स के की तकदीस में। ये छुपी हुई थी, पोशीदा थी, उसी में छुपी। अगर खुदा हमें जिंदगी ना देता तो फिर नतीजा आज हम आदम की सूरत पर वापस लौटने के लिए शायद शरीयत पर और किस पर भरोसा करते? नेक अमाल पर या साक्रामेंट पर या कुछ और हम जो अमाल हैं उनको दोहराते। रोमियो 7वां बाब उसकी 18वीं आयत से पढ़िए तो ये भी क्लियर हो जाएगा जी। रोमियो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे मन नहीं पड़ते जी। थोड़ा सा आगे पढ़ दिए। चाचा, जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ। जो मुझ में क्या है? बसा हुआ है। इंसान के अंदर गुनाह बसा हुआ है। इसलिए शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारने की बजाय ताकत लगा लगा के, कुव्वत लगा लगा, बेहतर क्या है
रूह कुद्स की तकदीस की ताकत, कुव्वत, अल-मसीह के तजस्सम की ताकत, और जो दानियल में ये 5 चीज़ें बयान की गई, एक आदमजाद जिसका तजस्सम आज वो कदीमुल अयाम से, कब से, देखिए पढ़िए बीच में, कब से है, यानी बनाए आलम से पेशतर से वो उसने हमारी नजात के लिए काम किया। उसको एक सल्तनत, उसकी क्या है, एक सल्तनत है, और उस सल्तनत में कौन कौन शामिल है, देखें पढ़िए। सब लोग और तमाम उम्मतें अहले लुगत उसकी क्या करें, खिदमत करें। इसका मतलब है कि सल्तनत का दायरा कार मुख्तसर नहीं है, दुनिया है, पूरी दुनिया है, पूरी नस्लें हैं। अगर हम इस तरह से सिर्फ ग्लोब तक रहें तो शायद कोई नस्ल बीच में से कोई मिस हो जाए। यानी पहले आदम से लेकर इंसान, आखिरी इंसान तक उसका दायरा कार है उसकी सल्तनत का, और उसके सल्तनत में क्या होगा, हशमत और ममलकत उसको कुछ ज़वाल नहीं। यानी ये बेटा हमारी फितरत को तब्दील करने के लिए यूं सल्तनत कायम होगी। ये नहीं कि वो आया कि 6 बजे वो आ जाएगा, है ना, 5 बजे आ जाएगा, या जब हम ज़ोर से गीत गाएंगे तब आ जाएगा, या हम ज़ोर से जब दुआ करेंगे तब आ जाएगा। नहीं, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ताकि उसके तजस्सम के सबब, ताकि उसके रास्तबाजी के सबब से, ताकि उसके फिदिये के सबब से हम कभी भी मौत के सुपुर्द ना किए जाए। और ज़वाल क्यों नहीं है, इसलिए कि उसने एक ही बार में, एक ही दफ़ा तजस्सम लिया, और एक ही दफ़ा उसने क्या की, कुर्बानी दी। एक ही दफ़ा उसने हमारे लिए रास्तबाजी कमाई, और एक ही दफ़ा, यानी एक इंसान के सबब से दुनिया में मौत आई, गुनाह आया, उसने यहाँ पर बादशाही की, और एक ही के सबब से क्या हुआ, जिंदगी आई, और जिंदगी ने हम सब पर क्या की, बादशाही अपनी कायम की। अब हमारा क्या मसला है, हम या तो अल-मसीह को उस तरह से जानते नहीं कि उसके तजस्सम की वजह क्या है, डीएक्टिव कर देते हैं हम उसके तजस्सम को, उसकी सलीबी मौत को, उसके जी उठने को, कि मैंने ये कर लिया है, ये नहीं किया, तो अल-मसीह क्या हो गए, डीएक्टिव हो गए। नहीं, मैंने ये साक्रमेंट कर लिया है और ये नहीं किया, फिर ये अल-मसीह क्या हो गए, डीएक्टिव हो गए। अल-मसीह का दावा जो तकदीर इलाही में हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने सबको जिंदगी दे दी। ये एक अलग बात है कि बिलीव ना करने के सबब से हम वो जिंदगी अपने हाथ से खोते जाते हैं। कुछ लोग नाम लिखवाने, किताबें है हाथ में ना, नाम लिखवाना नहीं, क्या करना है अब क्या करना है, लिखवाना है, कटवाना है, उन कटवाना है सर जी। मतलब जो लिखा गया, बनाया, रोई ज़बूर 139 में हम क्या पढ़ा, तेरी किताब में लिखा मेरा नाम, वो अयाम, वो जिंदगी। यही तो अल-मसीह कहते हैं कि सब कौमों के पास जाकर क्या करो, अंजील यानी खुशखबरी दो। खुशखबरी क्या है कि जिंदगी मिल चुकी, मौत से निकलकर तुम जिंदगी में दाखिल हो, और तुम पर सजा का हुक्म नहीं। ये खुशखबरी दो। लेकिन हम किधर घुस जाते हैं, या किस्मत परस्ती है, या नेक अमाल है, या सैक्रामेंटल है, या कुछ और है। हमें यकीन ही नहीं कि हमें हमेशा की जिंदगी
दे दी। हमें यकीन ही नहीं आता वो कौन सा फार्मूला कि जिसके सबब से हम हक का सतून रहे, हम कुल्ली से आना हो। क्या ना हो? कुल्ली से समझते? कौन कौन समझता है? कलीसिया को दो टुकड़े किया, दो कलीसिया लफ्ज को क्या किया? कलीसिया अगर उसको दो हिस्से कर दे तो क्या बन जाएगा? कुलीसिया। हम कौन सी कलीसिया? हक का सतून। दूसरा तो नहीं है ना? दूसरा क्या था? कुलीसिया। जो किस्मत परस्त, जो ये मानता है कि उसने अभी बचना है, जो ये मानता है कि उसके अभी बहुत सारे काम बाकी, जो ये मानता है कि मुझे अभी ये जिंदगी मिलनी, जो अभी अदालत का इंतजार करता है, वो क्या है? कुलीसिया। वो क्या है? कहे तो सही। कोई नहीं सुनेगा, कुलीसिया वाला सुनेगा ही नहीं। आप कहे ऊंची सारी, वो क्या है? कुलीसिया। और हक का सतून कौन? जिसको बनाया आलम से पेशतर चुन लिया गया, जिसकी जिंदगी में तकदीस का मरहला जारी और सारी है, जो रूह कुद्स के वसीले से अपनी जिंदगी को अल-मसीह के इख्तियार में रखता है, ताकि उसको क्या किया जाए? रोज बरोज उसकी मौत वाली फितरत, नस्ल आदम वाली फितरत को इब्ने आदम की फितरत पर क्या किया जाए? तामीर किया जाए। आपको अल-मसीह का तजस्सुम इस सबब से मुबारक हो कि अब हम कुलीसिया नहीं बल्कि क्या है? हक का सतून है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, गौर भी करें कि हम कहीं उसके तजस्सुम को दूसरे मीनिंग्स में तो नहीं ले रहे।